Namaste. A warm welcome to our channel Hope Fairy. And today I have a very special guest with me. The storyline for today is, someone who was already working, and then due to marriage, she had to travel a long distance from where she was working. And the scenario, the ecosystem where she landed into was not that supportive enough for her, to carry with her work. And she chose to leave corporate and start up something of her own. And that made her to discover what is she good at. So it's better that we hear it from the person herself. So Mitu, a warm welcome to our channel. Thank you so much, Umadi. Thank you so much. I was amazed when I got the call from you और तुमने बताया मुझे कि ऐसा एक पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें मैं अपना जर्नी शेयर करूंगी. I got so excited because this is the first time I'm doing something like that. But जो भी मैंने अचीव किया है उसको इस तरीके से मैं सबके सामने शेयर करूंगी, वो मतलब एक बहुत अमेजिंग चीज था. I was very excited to share my journey. So मे बी आप लोगों को अच्छा लगेगा. मैंने जो भी अभी तक किया है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑफ कोर्स मैं. Yeah, definitely, because that you came here to Kolkata to have a vacation, to have a family time. और तुमने जो मेरे को ये वक्त दिया, हमारे चैनल को जो ये वक्त दिया, like it's very like I'm touched. The reason why I feel that you are one of our celebrity of our channel is because of the fact that you were doing so well, before your marriage. If you can just help our viewers and also to me know that how this transition has happened, like what happened, you went to which place, how was that place, and how did you land up becoming a chocolatier? So, like, as you know, I have shared everything with you, my thin and thicks. So basically, after my college and everything, I got placed from my college only in a company in Calcutta. And like me, I'm a person who never leave anything. Like it's very difficult for me to leave a person, to leave a job. तो एक बार जो पकड़ ली कोई चीज तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो. So that was my first company, Indiabulls Venture. I've started my journey from there. And that was the 2nd July 2012. और almost 8 year 7 months मैंने वहाँ जॉब किया था और बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने उसे कंटिन्यू किया बिकॉज आई यूज्ड टू लव माय वर्क. काम करना और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, बट वो एक काम ही है जो आपको एकदम स्ट्रेंथ देता है. फॉर मी आई एम लाइक दैट. बिना काम के रहना इज लाइक मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कुछ होगा मेरे साथ. उसके बाद फिर मैंने एमके रियल्टर में कंटिन्यू किया और इट वाज ऑलमोस्ट आई वाज कंटिन्यूइंग माय जॉब. और जस्ट बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस और मेरे सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया था जब मेरी शादी हुई. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, सो आई वाज वर्किंग ओनली, बट आई नेवर गॉट दैट ब्रेक आफ्टर माई स्कूल, आफ्टर माई कॉलेज. इट वॉज द कंटिन्यूस थिंग, इवन नॉट बिटवीन द 2 जॉब्स. तो फाइनली वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं जब मैंने कंसीव किया तो उस टाइम पे आई थॉट आई शुड टेक सम ब्रेक एंड देन आई विल कंटिन्यू अगेन माई जॉब. But after Momo came in my life, that was the wonderful moment he came. So after that I didn't get any opportunity because वो इतना ही इंटीरियर जगह है कि वहाँ हम लोगों के लिए बेसिकली जो मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग, वहाँ पे इस तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. कुछ साल ऑफ कोर्स बेबी पे थोड़ा फोकस करना ही पड़ता है. इट्स वेरी टफ फॉर अ मदर टू कंटिन्यू विद अ बेबी एंड द जॉब. एंड इफ यू आर इन अ न्यू प्लेस, it's really very difficult. Absolutely. If you're searching for a new job, if you're continuing, then maybe thoda easy ho jata hai because you're continuing with the same job, with the same place, with the same people. Right. So for me, everything was new. The place, the people only. Which place was it, if you could let so us the place was Solapur. So I don't think काफी लोग जो ये वीडियो देख भी रहे होंगे सबको सोलापुर के बारे में पता होगा. So this place is a very it's not a very big city.
सो इट इज ऑलमोस्ट 4 hour to 5 hour डिस्टेंस फ्रॉम पुणे। और बट जैसा कि हमारे हस्बैंड जो जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड एनटीपीसी में हैं, तो जो पावर प्लांट्स होते हैं वो इसी तरीके के थोड़े इंटीरियर में होते हैं, दैट आवर लाइफ इज लाइक दैट ओनली टिल 60 year माय हस्बैंड विल कंटिन्यू लाइक दिस। उनका कुछ ना कुछ इंटीरियर लोकेशन में ट्रांसफर होता है, सो इसी तरह से उनकी लाइफ चलने वाली है, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम एज अ वाइफ, एज अ मदर। सो मैंने सोचा कि माई बेबी इज वेरी स्मॉल, सो फॉर मी टू कंटिन्यू माई जॉब अगेन इन कलकत्ता, बेबी को लेकर कोलकाता में स्टार्ट करना मैं कर ही सकती थी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड द थिंग विच आई नेवर वॉन्ट कि मैं अपने बेबी को अपने उसके पापा से दूर रख के वो जो बचपन है उसका, जो उसका प्यार है वो दूर कर दूं। So I thought like I should start something like from Solapur only. So तब मैं कुछ वीडियोस देखती थी, of course as everybody does. तो उस टाइम पे मैंने देखा कि किसी को मैं जानती थी, not very close, but मेरी ही बैरकपुर में वो रहती थी, उन्होंने वो चॉकलेट का बिजनेस करती थी, तो I thought like maybe chocolate, maybe cakes or something I can start baking or making. आई वॉज नेवर इन टू दिस। जॉब करते करते तो मुश्किल से मुझे खाना बनाने का टाइम मिलता था, मामा यूज्ड टू कुक, वही मुझे देती थी खाना वगैरह एवरीथिंग। लेकिन मैंने सोचा कि लेट्स डू इट, और मैंने एक कोर्स करने का डिसाइड किया। बट वो कोर्स के टाइम, मतलब मैंने जब डिसाइड किया और जो कोर्स का डेट था उसके बीच में ऑलमोस्ट 15 to 20 days का एक गैप था। सो आई थॉट लाइक फर्स्ट तो मुझे लगा मैं ये कर नहीं पाऊंगी। Then I watch some video. Actually आपको जब किसी चीज में कुछ इंटरेस्ट आ जाता है तो वो रेजिस्ट जो वर्ड है, मतलब पेशेंस, उसके बाद मेरे पास अब नहीं रहता है। तो मैंने फिर वीडियो देखना चालू किया यूट्यूब से, और मैंने देखा कि काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना करियर बनाया है while they are staying in a city, they are staying in Pune, they are staying in Calcutta, Delhi, उसके बावजूद वो लोग घर से बिजनेस कर रहे हैं, and they are earning more than lakhs in a month. मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। Even they are only not doing their job, they are motivating so many other women जो सोचती है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगी, उनके पास एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ये जो चाहे वो मेकिंग हो, चाहे रेजिन आर्ट हो, कोई भी चीज आजकल स्मॉल बिजनेस जो चल रहा है उससे काफी लोगों को बहुत हेल्प मिला है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियोस जितने भी हैं पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जब मैंने सारे वीडियोस देखे तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया, आई जस्ट क्विकली, मतलब ऑन द नेक्स्ट डे आई वॉट एवरीथिंग एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग चॉकलेट्स। और उसके बाद जो फर्स्ट एक गेट टुगेदर था, जो हमारे सोलापुर में एक बंगाली कम्युनिटी है छोटी सी, वहां पे एक गेट टुगेदर था, और मैंने वहां पे फर्स्ट अपने चॉकलेट्स जो है ऑलमोस्ट 4 to 5 वेराइटी के सबको टेस्ट कराया। दे जस्ट लव्ड इट, they was not expecting कि ये मैंने बनाया है, they thought I have purchased from somewhere और मैंने कहीं से मंगवाए हैं, maybe for specially this occasion, क्योंकि कुछ get together था हमारा, तो they just loved it। तो मुझे थोड़ा वहां से थोड़ा सपोर्ट मिला और मुझे थोड़ा एनर्जी आया कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, एंड आई थिंक पीपल विल लव इट। तो उस जगह पे जहाँ पे nobody is thinking like that, काफी लोग हैं, काफी women हैं जो अपना जॉब करती है वहां से, they are doing the IT thing, this hybrid mode, and normally work from home is fine. उसके अलावा nobody can think anything from out of the box. Right. Baking cake is something जो काफी सालों से चला आ रहा है। ये मतलब शायद मैं बहुत छोटी सी थी तब से मुझे पता है कि ये आंटी केक बेक करती है, बट मेकिंग चॉकलेट्स ये मैंने कभी सुना नहीं था, बचपन में तो एटलीस्ट। तो उसके बाद जब मैंने शुरू किया बनाना और बाकी लोगों को पता चला, मैंने अपना इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट किया, आई जस्ट गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम एवरीबडी। तो उसने मुझे एक किक दिया और मुझे समझ में आया कि आई एम डूइंग समथिंग राइट। और जब मुझे ऑर्डर्स आने चालू हुए तब मुझे पता चला कि कितना डिमांड है होममेड चॉकलेट्स का, लोग कितना पसंद करते हैं हेल्दी चॉकलेट्स हो, होममेड चॉकलेट हो। और सबसे स्पेशली जो है हमारे पेज का, मतलब जो मैं मिल्टन ब्लिस मेरे पेज का नाम है, मेरे ब्रांड का, कि आप कस्टमाइज चॉकलेट बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोगों के पास आजकल पैसा बहुत है, लेकिन उनको क्या चाहिए, कस्टमाइजेशन चाहिए। अभी नेस्ले इतना बड़ा कंपनी है, या डेयरी मिल्क का आप चॉकलेट ले लो, बट दे आर नॉट गोइंग टू कस्टमाइज एनीथिंग फॉर यू, बट आई एम देयर फॉर कस्टमाइज एनीथिंग। तो उसके बाद जब मैंने ये सारी चीजें चालू की और उसके बाद एक जोश आ गया अंदर कि मुझे हर दिन एक वीडियो पोस्ट करना है। इंस्टाग्राम का जो भी जिस तरीके से इंस्टाग्राम चलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जो कंटिन्यू ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 घंटा ट्रैवल करके मैं अपना ऑफिस जाती थी आती थी। मैं बैरकपुर में रहती थी, मेरा ऑफिस पार्क स्ट्रीट में था, और उसके बाद सेक्टर 5 में। तो इतना लंबा ट्रैवल करके जब मैं जाती थी आती थी, एक्सेप्ट माई जॉब, आई नेवर थॉट अबाउट एनीथिंग।
मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी उसके बाद। बट जब मैंने जॉब छोड़ा तब मुझे पता चला कि लाइक आप घर से भी कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने काफी लोगों को मोटिवेट भी किया है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से उस मतलब छोटे से, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैं सोलापुर में रहती हूँ, बिकॉज सोलापुर फिर भी बहुत बड़ा है। Right. सोलापुर के अंदर एक टाउनशिप है जो सिटी से बहुत दूर है। इट्स लाइक 45 मिनट टू 50 मिनट फ्रॉम द मेन सिटी। उस एक छोटे से टाउनशिप में हम लोग रहते हैं। आई विल नॉट से दैट इज अ छोटा सा टाउनशिप, बड़ा सा टाउनशिप भी है, लेकिन लोग वहां बहुत कम है। इट्स लाइक आई थिंक 150 एंड 200 फैमिलीज आर देयर। सो उतना ही है। अगर अब मैं सोचती कि मैं 200 लोगों को चॉकलेट्स बेचूंगी, कितने लोग ही मेरा चॉकलेट लेंगे? बट इट इज नॉट लाइक। तो इट्स नॉट ओनली दैट, कोलैबोरेशन के लिए भी मुझे काफी मैसेज आते हैं, और कोलैबोरेशन किया भी है काफी कंटेंट क्रिएटर से। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, नॉट अ मोनोटोनस थिंग। आप काफी लोगों से बात करते हो, दे मेक योर कंटेंट लाइक आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। Both of our husbands are from the same organization. I understand the difficulties that you manage every day, Mitu, and I completely understand. And I was also, one of them or two of my friends there had also communicated that what a wonderful chocolate Mitu had created. So I'm being very curious. Still now, how many kinds have you created? To be frank, it's not, I'm not able to tell you the exact That's thing, okay. That's but okay. it's almost like sometime when it's like an occasion, for example Rakhi or maybe it's New Year, उस time पे बहुत orders आते हैं। There was a month of Rakhi, I think I got 50 orders. So इस तरीके से होते हैं, but overall in a year, it's been a year I have completed that page, so maybe it's more than 100, I guess. And you have also sent chocolates for our ICF Kolkata. Yeah, exactly. One of the events. Or brands, like the variants that you have. You just now mentioned that you also try to make it healthy. Yeah, exactly. Healthy version. So what are the options that you have so far explored? Basically, when I have started this course and when you are into something, so आपको इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप उसको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय नॉर्मल चॉकलेट कोर्स, आफ्टर दैट मैंने एक हेल्दी चॉकलेट्स का भी कोर्स किया हुआ है। सो इन दैट आई नो 15 प्लस वेराइटीज ऑफ हेल्दी चॉकलेट्स विच आई मेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट and like almond, these all thing, then jaggery, then stevia, honey. With these all thing, I made some healthy chocolates, जिसमें almost 15 to 16 varieties है, which is good for everyone. Like वो kids के लिए भी अच्छे हैं, और आजकल जिसको बोलते हैं knees में काफी लोगों को पेन होते हैं, तो 60 plus लोगों के लिए भी वो अच्छे हैं। People have that tendency, they think that chocolates are not good, but ये बहुत गलत चीज है। If it is dark chocolate, which is 70-80% dark, that is very good for you. तो इस तरीके के चॉकलेट्स भी हम यूज करते हैं। एंड सून आई थिंक वील मेक आवर ओन चॉकलेट्स बार, जो कि उसका भी कोर्सेज किया हुआ है, बट उसको भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट हेल्दी वर्जन भी बहुत अच्छा है, एंड इवन इट्स टेस्टी ऑल्सो। Right. Mitu, thank you so much for joining us today and sharing your inspiring journey with us. I'm sure your story will motivate many of us to take the first step forward towards our dream. And if you enjoyed this conversation and want to watch more inspiring stories like this, please keep in touch and subscribe to our Hope Fairy channel and supporting us like the way you're doing now. Also do make sure that you try Melt and Bliss chocolates. They are awesome. Thank you for watching, and we'll see you in the next video.